लार्ज कॉर्पोरेट्स हैं वो इन एनी केस आर नाउ बोरिंग काइबोर माइनस। तो अगर 17.5% में पॉलिसी रेट है, काइबोर जहां भी है 17%, आप मेरे से बेहतर जानते हैं, और अगर माइनस आ रहा है तो ऑलरेडी वो 15-16% पे जो टॉप कॉर्पोरेट्स हैं वो दे आर स्टार्टिंग टू बोरो एट दैट रेट। और इंशाल्लाह मैं बहुत पुरुमीद हूँ, बिकॉज बोथ the exchange rate and the policy rate are in the domain of the central bank. So we can, from the Ministry of Finance perspective, only give our views in terms of what our expectations are, that as the inflation drops down, the policy rate should follow. अब इसी में जो Ministry of Finance कर सकती है, वो हमने पिछले हफ्ते जैसे आपने देखा, तो डोमेस्टिक बोरोइंग पे हमने सब अपनी जो टी बिल्स और PIBs थी, सब बिड्स को रिजेक्ट किया, और उसके 3 बेसिक मैसेजेस थे। नंबर 1, जो हमारी फिस्कल सिचुएशन में इंप्रूवमेंट आ रही है, मैंने करंट अकाउंट की ऑलरेडी बात कर चुका हूं, बिकॉज द रेमिटेंसेस आर एट एन ऑल टाइम हाई एंड दे आर स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग। एक्सपोर्ट्स पे बढ़ावा आ रहा है, और इवन इन अगस्त वी वर अप 4% ईयर ऑन ईयर, और उसमें मैंने IT की एक्सपोर्ट का ऑलरेडी जिक्र कर दिया है। तो अब अगर आप वापस आए इनटू आवर फिस्कल सिचुएशन, तो उस पे ये मैसेज देना बहुत इंपॉर्टेंट था कि वी आर अंडर नाउ नो डेस्परेशन टू बोरो एज द गवर्नमेंट। नंबर 2, when we borrow, we'll borrow at our terms, because we are going to bring down the cost of borrowing, because debt servicing is the largest component in terms of our expenditure. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हमने जो PIB T-bill ऑक्शन पे जो सिग्नल दिया है, और उसके बाद जो बायबैक प्रोग्राम है उसका भी हमने पिछले हफ्ते उसका जिक्र कर दिया है। एंड देयरफॉर उसमें जो थर्ड मैसेज ये है कि सिंस द गवर्नमेंट इज अंडर नो डेस्परेशन टू बोरो, now for the banking sector, start lending to the private sector, because it's the private sector which has to lead the country. तो इसलिए आप उनको फाइनेंसिंग दीजिए। सो ये मैं जो बात करते हैं कि जी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है और इसका क्या फ़ायदा है, इसका लेडीज एंड जेंटलमैन फ़ायदा सिर्फ ये है कि ये हम एक फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हैं। अगर ये फाउंडेशन मजबूत नहीं होगी, उस पर हम घर तामीर नहीं कर सकेंगे। If we have to go towards inclusive and sustainable growth, it has to be on the background of the macroeconomic stability. अब अगर आगे चलिए, मैंने जिक्र किया कि हम IMF का प्रोग्राम क्यों चाहते थे in the as a longer and larger program. The second part of it is structural reforms, and for us as a country, it's a defining moment, because this is going to determine the direction of travel, and we are very clear about the direction of travel. और इसके बारे में जो होम ग्रोन इकोनॉमिक रिफॉर्म और एजेंडा, उस पर बहुत बात हुई। We will always consult our think tanks here in the country, and we will always take foreign advice into consideration as we go forward. इसमें ना ऑफेंस की बात है, ना डिफेंस की बात है। हमें अपने बेस्ट ब्रेन्स चाहिए इस मुल्क में, जो हमें गाइड कर सकें और इसमें हमें सपोर्ट कर सकें, and we want the best brains outside the country to help and support us. So I will never ever defend कि जी हमने क्यों बाहर से हम एक्सपर्ट्स लेकर आए हैं, because experts हमें लोकली भी चाहिए और बाहर से भी चाहिए, and that is the basis of our homegrown economic agenda. अब उसमें कौन सी ऐसी बात है, मैं पहले भी ये जिक्र कर चुका हूं कि जो IMF कहता है और जो हमें चाहिए, tax to GDP, we have to get it into a double digit phenomena on a structural basis, because otherwise it's not sustainable. और उसमें मैं 1 मिनट में वापस आऊंगा। एक वजह है कि चेयरमैन FBR मेरे साथ बैठे हैं, because I will talk about it, and if there are any question and answers in more granular form, he is here to respond to that. The second thing is productivity and competitiveness. Import substitution is not going to be good enough.
It is going to be export-led. And therefore, we have to get competitive in the community of nations. मैं पहले ही बात कर चुका हूँ the energy sector reform, उसमें Minister Energy, Power Minister, SAPM, they are taking it forward in terms of what they're doing in terms of privatization agenda, in terms of changing the boards, etc. And the next one is SOE reforms. और इस SOE reforms में मेरा अपना थोड़ा सा अमल दखल है, because I chair the cabinet committee on SOEs and also chair the committee on right sizing. और उसमें मैं 1 मिनट में वापस आता हूँ, because the next point is public finances. क्योंकि इतना बड़ा पुशबैक है कि आपने इतने टैक्सेस लगाए हैं, आप टैक्सेशन लेके जा रहे हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है, और ये मुनासिब जो है वो पुशबैक है इसके बारे में. तो उसमें मैं सिर्फ ये जिक्र करूंगा कि काबीना ने सैलरीज नहीं लेने का फैसला किया, हमने कोई और चीजें नहीं की, लेकिन द रियल थिंग विच इज गोइंग टू हेल्प इन रिड्यूसिंग द एक्सपेंडिचर्स इज रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट. और वो राइट साइजिंग कमेटी मैं खुद चेयर कर रहा हूँ, एंड उसमें पहले भी बात हो चुकी है, लेकिन 6 मिनिस्ट्रीज जो हैं उसके बारे में ना सिर्फ हमने फैसला कर लिए हैं, दोज हैव बीन रेटिफाइड बाय द कैबिनेट एंड द प्राइम मिनिस्टर. उसमें से एक जो मिनिस्ट्री है वो अबॉलिश हो रही है, उस पर कई चूंकि गुफ्तगू चल रही है. आई जस्ट वांट टू बी clear that the ministry which is being abolished is Capital Authority, CADD, which is being abolished. 2 मिनिस्ट्रीज हैं जिनको मर्ज किया जा रहा है, और उसके अलावा हम चूंकि खुद सिर्फ ये मिनिस्ट्रीज का ताल्लुक नहीं है, वहाँ जो भी